वृक्षस्य श्यामला
सुष्मिता धरणी भरणी Magic and majesty, dignity and discipline, power and pathos. Was this the music of Pandit Omkarnath Thakur? Elegance and eloquence, energy but emotion, eminence and excellence. Was this the music of Pandit Omkarnath Thakur? Assertion and authority, melancholy and mellifluousness, devotion and dedication. Was this the music of Pandit Omkarnath Thakur? We musicians end the concert with a Tihai, and 3 times Tihai is a Chakradhar. I have started with the Chakradhar, and the answer is none of these adjectives can define what was Pandit Omkarnath Thakur, the muse and the music. उनकी गायकी में माता की ममता थी, उनकी गायकी में मानिनी की मस्ती थी, उनकी गायकी में विरहिनी का वियोग था, उनकी गायकी में भावुक की भक्ति थी. How do you define a personality like Pandit Omkarnath Thakur? ક્યારેક તેમની ગાયકીમાં જ્યારે રૂપેરી ઘંટીનો નાદ સંભળાતો હતો અને ક્યારેક એમનો અવાજ બુલંદી અને ગગનભેદી બની જતો હતો અને જ્યારે મેઘગર્જનાને આહ્વાન આપતો હોય. Sometimes his music was like Shelley. Music when soft voices die vibrates in memory. And sometimes his music was like that of Rilke, shattered me music with a rhythmic fury.
અનેક ભાવો એમના સંગીતમાં હતા, પણ સૌથી વધારે ભાવ હતો ભક્તિ અને કરુણતાનો, કારુણ્ય. To quote Shelley again, we look before and after and find and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. His gaiki, his phrases were planned, practiced, polished to level of perfection. When he was in Bombay in 1940, he started his classes by name Sangeet Niketan. From Ghia building, they shifted to an apartment in Taldev. And the neighbor was Dave family. The grandson of the Dave family was Pradeep. And when Panditji went to Banaras, he had taken Pradeep with him. That Pradeep was none other than Dr. Pradeep Dikshit. And we are fortunate that Dr. Archana Ben Dikshit, who has also spent 40 years or more in Banaras Hindu University, she has come all the way from Surat. And we welcome you, Archana Ben. Thank you. Thank you, sir. And Archana Ben, we have assembled a team of young musicians. Yes. As you can see, all of them are very young with one exception. Because I have still to attain my youth. As compared to what they are, I consider myself just a kid. Of course, as they say, I think Oscar Wilde said, that to reveal art and consider the artist is art's aim. That you all are extremely fortunate today, because that I am the compeer and I got a bad throat. Okay, so you are going to be saved from long speeches. But I must add, the Vande Mataram that was presented today, I believe in 1934 or something, when there was Congress session in Shivri in Bombay, the father of Hiraben Pathak had come to the house of Prajyabai Dosa. Incidentally, we must welcome Shri Vijayabhai Purecha, who is in the audience. And the two families with which Panditji was very close in Bombay, that were Purecha family and the Dosa family. So there were requests, and he said that request from Gandhiji that before the session starts, let Pandit Omkarnathji sing Vande Mataram. So imagine a scene where Panditji was singing Vande Mataram, next to him was Gandhiji, and behind him on Tanpura was Shri Prajyabai Dosa. The history was repeated when we got independence on the 15th August 1947. On 13th, 14th of August, Panditji was in Madras. So Sardar Patel sent a telegram, we want you to sing in the first parliament. He sent a special plane, and Panditji sang this version of Vande Mataram, what we just heard today. Of course, he sang it while standing, but these three artists have not been standing, though they have been outstanding. We are going to present to you different kinds of music that he regaled us with. A short between classical, Gujarati songs. He even sang a ghazal. Can you imagine Pandit Omkarnathji singing a ghazal? Yes, we got a recording of 1920, and that Janvi is going to present.
We are going to present Rag Nilambari on the violin. We are going to play his recordings to the Ghunguru, to the Nupur of Bhakti. And then we will end with Jogi Mataja. हिंदी में, हाँ कुछ लोग हिंदी में, तो मैं हिंदी में कहना चाहूँगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स CA, शॉर्ट फॉर्म CA होता है. तो ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA. और म्यूज़िकल स्केल्स में भी C और A होता है. हाँ. तो ये म्यूज़िक के भी महारथी है, म्यूज़िक में भी महारथी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही. तो दोनों CA इनके पास हैं, सारी डिग्रियां वो अपने पास संजो के बैठे हैं. इनके लिए मैं चाहूँगी कि गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज. A for arranger also. He is arranger also. True, very true. That you must appreciate the sense of humor of Shraddha ji. Now, from a pure classical, we are going to go on the other end. A ghazal. Pandit Omkarnath ji singing a ghazal.
way back in 1920s, he had recorded that the ghazal of Shayda, Sharu Sharu ma samjho ke sharuwaat hashe, मीठी मजाक हशे मशकरीनी बात हशे. And that we are going to request Janvi to sing. But before that, I must ask you, Archana Ben. जी बोलिए. Pandit Omkarnath ji was in a time where there were great ustads. Yes. Ustad Fayyaz Khan Sahab, Ustad Abdul Karim Khan Sahab, and so many others. And as Pandit Ravishankar ji has said, he was the first Pandit among the ustads. So how was his gaiki different from those that who was contemporaries? गायकी के बारे में और वो अपने ज़माने के अपने समकालीन उस्ताद या गायकों या संगीतज्ञों से किस तरह से थोड़े डिफरेंट थे, ये दो बात मैं बताऊंगी. गायकी तो उनकी वैसे सीखे तो वो ग्वालियर घराने में पंडित विष्णु दिगंबर जी से थे, लेकिन भ्रमर वृत्ति से डिफरेंट गायकों से जो अच्छा पॉइंट उनको लगा वो उन्होंने अपनी गायकी में एसिमुलेट करके अपनी एक डिफरेंट गायकी की थी. तो कई बार उनके गुरु भाई ये कहते थे, अरे वो गुरुजी की सिखाई हुई गायकी नहीं गा रहा है, अपनी गायकी गा रहा है. लेकिन दिट वॉज इज क्रिएटिविटी. हाँ, और ठीक है, खुले गले से गाते थे. जैसे उन्होंने कहा, कभी आवाज़ इतनी बुलंद, कभी आवाज़ छोटी करके, काकू प्रयोग बहुत करते हैं. भाव प्रधान गायकी थी. वो खुद भाव में डूबते थे और अपने श्रोताओं को, पूरे श्रोताओं को डुबा देते थे. और उनकी आलाप प्रधान गायकी थी. 2/3 1/3 ही रखते थे. तानों पर इतना जोर नहीं, आलाप पर ही जोर. राग की पूरा राग का वातावरण छाना चाहिए और ज़्यादा आकार से भी ज़्यादा शब्दों से आलाप करते थे, ऐसा मैंने महसूस किया है. और आलाप के बाद बोलबांट, बोलतान सब करते थे. तिहाइयाँ लेना ये सब था. छोटे ख्याल में बहलावा भी बहुत करते थे. मान लीजिए पग घुघरू माध अभी डांस करने मतलब बताने वाली है, मीरा नाची कितनी ढंग से बताते थे. तो ये सब उनके गायकी के ये थे. और गायकी इस समय खुद भी अपने उनका अंग संचालन, उनका चेहरे का भाव ये सब होता है. तो कुछ लोग उनको ये भी कहते थे कि आप तो अभिनय सम्राट भी हो, खाली गायन सम्राट नहीं हो, ये भी कहते थे. अच्छा, हाउ वॉज इट डिफरेंट देन ऑल दिस? ये तो नहीं कि पहले उस्ताद मतलब उस्तादों में स्थान बनाने वाले पहले पंडित थे, ऐसा रविशंकर जी ने कहा. लेकिन कुछ उस्ताद फिर उनसे डरने लगे थे कि अरे इस पंडित से संभाल के रहियो. काफ़ी हिंदू गायक इसके पहले आ ही गए होंगे, भास्कर राव बखले और सब बहुत विशेष गायक थे, अच्छे गायक थे. तो पंडित जी में विशेषता क्या थी, इन लोग सबसे क्या उन्होंने किया? तो मुझको 2-4 बात उनकी बहुत खास से विच मेक्स हिम रेयर अमंग रेयर्स. पहले तो ये कि जो इतना बड़ा गायक हो, प्रखर गायक, लोकप्रिय गायक, ही कैन इन्फ्लुएंस मासेस एज वेल एज क्लास बोथ. और ऐसे गायक होते हुए और लगातार प्रोग्राम, कुछ 10-15 साल का ऐसा ज़माना था कि हर 15 दिन में इस कॉन्फ्रेंस में इधर गाना हो. तो व्यक्ति अपना म्यूज़िक देखे कि भरत और मतंग और शारंगदेव ने क्या लिखा है वो देखे. लेकिन वो अपने विद्यार्थी काल से विष्णु दिगंबर जी के यहाँ पढ़ते थे, तब से भी प्रैक्टिकल के क्लास के साथ पूरी म्यूजिकोलॉजी की किताब पढ़ना. और इतना म्यूजिकोलॉजी में इंटरेस्ट था, भातखंडी जी को मिलके भी कुछ प्रश्न करने गए थे. तो म्यूजिकोलॉजी के तब से इंटरेस्ट था. जब बनारस में इंडियन यूनिवर्सिटी में कॉलेज खोली तो भारत का सबसे पहला म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारी कॉलेज में था. तो म्यूजिकोलॉजी में खाली पढ़ना नहीं, उन्होंने ये सोचा कि प्राचीन लोगों ने इतना उन लोग को भरत पर मतंग पर विश्वास था कि इनका वचन आर्ष वचन होता है, ऋषि तुल्य लोग थे, तो इनका वचन गलत हो नहीं सकता है. कहीं बाद में ऐसा हुआ था कि भातखंडे जी के कारण कुछ लोग ऐसा समझने लगे थे कि भरतकालीन संगीत से हम अब नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक बहुत अलग हो गया, यहाँ बहुत इन्वेजन हो गया, बदल गया. लेकिन पंडित जी ने स्थापना की कि नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इन्होंने अपनी जो प्रणव भारती रिसर्च बुक लिखी है उसमें लिखा है कि नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक इज़ मोर नियर टू षड्जग्राम एंड मध्यम ग्राम देन साउथ इंडियन म्यूज़िक. तो इतनी उन्होंने 2 ग्रामों के साथ बिलावल का संबंध, श्रुतियों की 3
3 तरह की श्रुतियाँ ये बताना, ये सब म्यूजिकोलॉजी में बहुत शोध की। तो एक और प्रणव भारती नाम का पुस्तक मतलब रिसर्च ग्रंथ लिखा, जिसके कारण केवल 5 कक्षा पढ़ा हुआ, औपचारिक उनका शिक्षण केवल 5 कक्षा तक हुआ था, ऐसे व्यक्ति को 2 यूनिवर्सिटी ने डिलीट दिया। सो इट्स वेरी बिग थिंग। और प्रखर गायक, लेखक, वक्ता, उनको लेक्चर करने बैठा तो कई गायक वादक कहते भी हम लोग को बुलवाइए, मैं हम बजवा लेंगे, गायक गा लेंगे, बुलाइए नहीं। लेकिन वो ही कुड स्पीक फॉर आवर्स टुगेदर, 1-1 घंटा, 1.25 घंटा आपका लेक्चर, जितना आप उनका गाना प्रेम से सुनेंगे उतना उनका लेक्चर भी इतना विद्वत्तापूर्ण होता था, तो लोग सुनते थे। तो वक्ता थे, गायक थे, लेखक थे, इन सब के अलावा एक गुण था प्रयोगवादी। वो म्यूज़िक का लाहौर में थे जब उनकी उम्र 20-21 साल की, तब भी वो जू देखने गए थे और वो शेर बहुत गुस्से में था। तो उन्होंने अपने साथ जो थे उसको कहा कि तुम थोड़ा क्या कहते हैं अपने वायलिन पर काफ़ी राग बजाओ, हम भी गाते हैं साथ साथ में, हम इसको थोड़ा। और सचमुच 5-10 मिनट काफ़ी सुनते सुनते शेर शांत हो गया। तो ये सब। और जब विदेश गए तो मुसोलिनी को नींद नहीं आती थी, तो अपने राग पुरिया से उन्होंने कई लोगों को नींद में, मतलब जिनको इंसोम्निया था उनको नींद के लिए। और जर्मनी एक बार विश्व शांति परिषद में गए थे, तो एक केमिकल वाला एक स्क्रीन था, उसके ऊपर उनको गाने को कुछ कहा तो सब रंग निकलने लगे। तो ये जो ध्वनि शक्ति को जो प्रकाश शक्ति में परिवर्तित होना, ये सब प्रयोग भी वो करते रहते थे। तो ऐसा सब एक चीज़, एक व्यक्ति में इतने सारे गुण हो, और अच्छे टीचर थे, स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर बहुत अच्छे टीचर थे, उनका बताया वो आप भूल नहीं सकते। तो इतनी सब चीज़, और कॉलेज उन्होंने स्थापी, और बड़ी, क्योंकि पहली बार इंडिया में यूनिवर्सिटी के स्तर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और MS यूनिवर्सिटी में संगीत की कॉलेज स्थापित हुई। तो वहाँ की जो एकेडमिक काउंसिल थी, उनको कन्विंस करना कि हाँ ना दिन ना बजाएंगे कि गाएंगे, उनको भी B म्यूज़ और M म्यूज़ मिल सकता है, वो बात वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे। वो तो पंडित जी से उन्होंने स्वीकार करवाया और इतने डॉक्टरेट तक के क्लासेस चालू करे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर होता है। तो और सब बहुत अच्छे अच्छे गायक थे, बस सबका सम्मान करती हूँ। और इवन पंडित जी भी सबका सम्मान करते थे, स्पेशली फैयाज का सबका तो बहुत करते थे। लेकिन ये सब गायक थे और बहुत ऊंची क्वालिटी के गायक थे, लेकिन इतने सब जो गुण पंडित जी में थे वो सब में नहीं थे। क्या बात है रचना मैम, बहुत खूब। She was referring to his style of singing. And none other than Prithviraj Kapoor was his fan. And Prithviraj Kapoor is on record to say, the Pandit ji, आप गायनाचार्य हो या आप नाट्याचार्य हो? पंडित जी गाते गाते अभिनय करते हैं या अभिनय करते करते गाते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। These are words of Prithviraj Kapoor. Right. Yes, જાનવી, શરૂમાં સમજ્યો, શરૂઆત હશે, જો કે આ તો મધ્ય છે પણ શરૂઆત છે.
समझो के शुरुआत हशे शुरुआत हशे मीठी मजाक हशे मश्करीनी वात हशे शरू शरू माहूँ समझो के शुरुआत हशे अजान हूँ अजान है तो अजान है तो लवलेश ना हूँ समझो के अजान हूँ है तो लवलेश ना हूँ समझो के दिवसो दुख ना हशे रुदननी रात हशे रुदननी रात हशे रुदननी रात हशे शरू शरू माहूँ समझो के शुरुआत हशे When we come to Pandit Ji, some 2 or 3 songs or bandishes are some sort of brand recall. And one is, of course, Rag Nilambari. We also have a Rag Nilambari in our South Indian tradition. Nupur, can you just show the Aro Avro? Because we are running short of time. Rag Nilambari in Carnatic music is completely different from Hindustani. It has the highest ni, which is known as the Kakali Nishadam, and the highest ga, which is the Antara Gandharam. Sare ga ma pani sa ni pa ma ga re ga sa. So this glide from ga to sa is the characteristic of Rag Nilambari in Carnatic music. Ga re ga sa.
Thank you, Nupur. As you must have realized, here we have Nupur, who is great not only in serving dhokla but also idli. But coming back to Ninambari, before we ask Nandini Shankar to play on violin, and when we talk of violin, that's a special instrument, because that is the only instrument that Mahatma Gandhi tried to learn. When he had gone to England as a part of what he called Baris Taru in his Atmakatha, he had bought a violin because in those days he wanted to be modern. That was before he became a Mahatma. So he bought a violin. He also retained a teacher to learn violin. After 2 or 3 months, he gave up and he pursued a different path in the search of truth. But the Khandan, the family of Dr. Rajam, has pursued violin, which I consider to be a divine romance between the bow and the string, in the search for truth. But before she starts, I'm going to request Bhakti to read out a beautiful piece on Nilambari, which was originally written by Pandit Omkarnath Ji in Gujarati, and that has been beautifully translated by Dr. Pradeep Kumar Dikshit in Hindi. That usually we say, I think that Robert Frost who said, that poetry is something which gets lost in its translation. But here is a beautiful translation and to be rendered in a beautiful voice by a beautiful. सब रागों के बारे में लिखा है ना, काफी रागों के बारे में लिखा है. हाँ वही. दर्शन के लिए परम प्रिय रागिनी नीलांबरी. नीलांबरी के धवल नीर मंदिर की ओर आइए मुड़ जाए. नीलांबरी का नाम लेते ही न जाने क्यों हिया भर आता है, अंतर उमड़ पड़ता है. जानते हैं क्यों? क्योंकि व्योम रंगी वसनों में नील गगन में चंद्र सरीखे प्रकाशित उसके उज्जवल और मधुर मनोहर सौंदर्य पर उसके आहत हृदय के करुण कोमल भाव सदैव अंकित रहते हैं. वेदना और विषाद के प्रतीक सदृश उस वियोग दग्धा के दृग आशा निराशा के हंसों को मोती का चारा सर्वदा देते हैं. पलकों की छलनी से छन छन के धवल निर्मल हुए नीर के सिवा उसके स्वाति तृषित चक्षु चातक प्यासे ही मरेंगे ना. नीलांबरी के निवास में 8 पहर बदरी बरसती रहती है. उसके दृग नीन आंसुओं के जल तरंगों पर नित्य हिलोरे लेते रहते हैं. आइए हम लोग उस करुणामयी स्वकीया सत्रारी के पुण्य दर्शन कर लाभान्वित हो, पावन हो, धन्य हो. निर्मल नयन नीर से जिसका नित्य अभिषेक हो, ऐसी उस नितांत निर्मला नारी को, उस करुण कोमल कामिनी को पुनः पुनः पूत हृदय से प्रणाम करते हुए आइए सुनेंगे राग नीलांबरी. एक स्नेहल भाई, एक बात पंडित जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मैं उनकी विशेषताओं में कहना रह गया. वो राग रस या राग भाव और रागों की राग रागिणी का उन्होंने दर्शन किया था, और वो बात वो अपने गायन के समय और अपने लेक्चर्स में बताया करते थे. जैसे उन्होंने नीलांबरी के बारे में ऐसे कि विरहदग्धा स्त्री है, दरबारी मालकों हिंडोल ये सब उनको पुरुष राग लगते थे, और मेघ ये सब पुरुष राग लगते थे. भाग्यश्री है, काम्बोजी है, तोड़ी है, नीलांबरी है, ये और गौरी ये सब उनको स्त्री राग लगते थे. किसी की ये उम्र है कि गौरी के बारे में कहते थे कि अभी
पूरा यौवन नहीं है, मुग्धा, और वो ऐसी कुत्ती फुत्ती है, और भैरव के बारे में बहुत गंभीर पुरुष है ऐसा। तो ये सब राग रागिणी के बारे में सोचना, उनका भाव, उनका पहले बात ये था कि राग इज़ नॉट खाली आने जाने में स्वरों का खाली ये एक्रोबेट्स नहीं है। ये राग एक एक भाव मूर्ति है, उसको समझना पड़ेगा, मन से समझना पड़ेगा। वो उसका आँख से दृष्टिगोचर नहीं है, कर्णगोचर है, मन से समझना पड़ेगा। और उन्होंने एक एक राग का ऐसा भाव सोचा था। और जब उन्होंने अपनी संगीतांजलि लिखी तो उसमें आरोह और सब जो, वो तो ग्रह उष्ण्यास लिखते थे, वादी संवादी नहीं लिखते थे, ठाट मानते नहीं थे, लेकिन नीचे हमेशा प्रकृति और भाव राग का लिखते थे कि ये गंभीर राग है, ये चंचल राग है, ये ऐसा लगता है कि कोई किसी से बात कर रहा है। तो ये उनको दिमाग में हमेशा था कि राग की ये भाव मूर्ति है और उसको ध्यान में रख के गाना चाहिए। डेट वॉज इज एस्टेब्लिशमेंट, यानी बहुत ज़ोर से राग रस में उन्होंने किया था। अब हम लोग एक्चुअल सुने नीलांबरी, और नंदिनी बजाएगी तो ज़रूर सुंदर वही लगेगा, बिल्कुल लगेगा राग और रस। राग नीलांबरी।
नंदिनी ओ नंदिनी आनंदिनी सूर और तार की बंदाकिनी। विराट नो हिंदोर झाकम झोर। महाकवि नानालाल दिग्गज पंडित ओमकारनाथ ठाकुर दिग्गज બંનેની જે કલા હતી તેમાં તો જાણે કદંબ કુસુમની કોમળતા, બંનેની કલામાં કદંબ કુસુમની કોમળતા બંનેના સ્વભાવમાં ખુમારી, અને ખુમારી શબ્દ ઇઝ અ ગ્રોસ અંડરસ્ટેટમેન્ટ. અને પંડિત નાનાલાલના એ શબ્દોને પંડિત ઓમકારનાથજીએ જબોર્યા રાગ સિંધુરામાં. એમાં પાછો શુદ્ધ ગાંધારનો પ્રયોગ કર્યો, કારણ કે સિંધુરામાં તો રૂપાબેન શુદ્ધ ગાંધાર હોય નહીં. અષ્ટાબેન એમણે વિરાટનો હિંદોરમાં રાગ સિંધુરાનો પ્રયોગ કેમ કર્યો હશે? કારણ કે જો વૃદ્ધાવસ્થા કે વાર્ધક્યનો હિંદોરો હોય તો પૂર્વાંગ સૂર ચારે, તમારે બે ત્રણ સૂરોમાં જમવાનું છે. આ તો વિરાટનો હિંદોર છે, એનો તો તા સપ્તકના આપને આંબવાનું છે, અને એને માટે તો રાગ સિંધુરો જ જોઈએ ને. બરાબર છે. તો એ તા સપ્તક પણ જ્યાંનો ન્યાસ છે એ વિરાટનો હિંદોળ પંડિત ઓમકારનાથજીએ જે ગાયેલો છે. ચાલો આપણે પણ સિંધુરાના સ્વરોમાં, એના સૂરોમાં સમર્પણ અને શ્રદ્ધાના ભાવથી નમીએ.
વિરાટનો હિંદોર ઝાકમ ઝોળ. હવે ઝાકમ ઝોળ પછી આપણે આવીએ ફરી એકવાર નુપુર પાસે. હા ના, નુપુર નોટ નુપુર જોશી, પણ રાગ માર્કોસ પંડિત ઓમકારનાથ પગે ઘૂંઘરું બાંધ બીરા નાચી રે. We are going to play the recording of Panditji, Rag Marcons. And where is Bhakti? She's There you are. She's ready with Nupur. Yeah, she's ready with Nupur. क्या होता है, हृदय में भक्ति होती है, पाँव में नुपुर होता है, और श्रद्धा पता नहीं. चलो पगे गुगरू बांध मेरा नाची रे. प्लीज प्ले द रिकॉर्डिंग. Nadi
For a person who is born in Gujarat and his constituency is Banaras, an incident is about chai. Then may I ask the former MP from Rajya Sabha, that whom do you think of? No, we are not talking of him. We are talking of Pandit Omkar Nath Ji. He was born in Gujarat. For many years, he settled in Banaras. Even after retirement, for some time, he continued to stay there. And there is an incident of chai, which I was told by Archana Ben. He was so particular that music has to be respected and the musicians. संगीत और संगीतकारों के सम्मान के लिए विष्णु दिगंबर जी भी बहुत पर्टिकुलर थे, और ये इनके शिष्य तो उनसे भी ज़्यादा पर्टिकुलर थे। विष्णु दिगंबर जी को पहले बुरा ये लगा, उनके जो गुरु थे इचल करंजीकर, जो जिस राज दरबार में दरबारी गायक थे, उनकी सीट सबसे लास्ट में, ही वॉज कॉर्नर लाइक मी, सॉरी। तो उनको ये लगा कि इतनी दिव्य विद्या है और मेरे गुरुजी का मान सम्मान नहीं है। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं ये करूँगा, और उन्होंने पढ़े लिखे निर्व्यसनी संगीतज्ञों को बनाने का निर्णय किया, और ये विष्णु दिगंबर जी का बहुत बड़ा कार्य है। ओमकार नाथ जी भी संगीत और संगीतज्ञों के मान सम्मान के लिए इतने पर्टिकुलर थे पहले से। 1925 की घटना है, गोंडल काठियावाड़ में गोंडल नरेश ने उनको गाने के लिए इनवाइट किया था। तो जो उनका व्यवस्थापक था, उन्होंने सब इस तरह कुर्सी लगाई और नीचे यहाँ गालीचा बिछा दिया, स्टेज नहीं था नीचे, और गाना अब शुरू होने वाला है। तो वो आए अपना तानपुरा और सब लेके, हम इस व्यवस्था में नहीं गाएंगे। तो वो बोला कि भाई क्यों, ये हम तो हर बार यही व्यवस्था करते हैं। तो कि ये व्यवस्था अगर आपको रखनी है तो आपका पैसा वापस ले लीजिए जो एडवांस में दिया है। हालांकि ही वॉज इन नीड ऑफ मनी एट दैट टाइम, क्योंकि वो अभी ओमकार नाथ बने नहीं थे, ही वॉज इन दैट प्रोसेस। तब भी ये बोले, तो वो तो ऐसा मालूम होता तो आपको बुलाते ही नहीं। तो कि ठीक है ले लीजिए ना पैसा, हमको नहीं गाना है। तो जाके वो जो मैनेजर था, उसने जाके गोंडल नरेश को कहा कि आया है जो लड़का ओमकार नाथ, वो तो कहता है कि हम नीचे बैठ के, मतलब यहाँ बैठ के नहीं गाएंगे, उसको चाहिए स्टेज चाहिए। वो कहता है कि श्रोता लोग ऊपर बैठे और गायक नीचे बैठे, ये व्यवस्था मुझको मंजूर नहीं है। तो गोंडल नरेश ने कहा जैसा वो कहता है, इसकी इच्छा है तुम लगा दो, उसके लिए मंच लगा दो। तो मंच जब लगाया और फिर सब आया, तब बहुत विनय से बात की। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत दिव्य विद्या है, हम लोग इसकी साधना करते हैं। जैसे एक अध्यात्म वाले कोई गुरु को जैसे आप लोग सम्मान करते हैं, वैसे संगीतकार का सम्मान आपको करना चाहिए। ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरी कला का सम्मान है, ये उन्होंने कहा। और ऐसा वो खाली अपने लिए ही मांगते थे, ऐसा नहीं, वो
संगीतकार मतलब एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे हॉल में प्रोग्राम हो रहा था और शायद रविशंकर या निखिल बैनर्जी somebody was playing सितार, और उस समय तो वो लोग they were also budding artists at those time। तो और इन बिटवीन वीसी साहब के लिए और इनके गेस्ट के लिए चाय आ गई, तो वो चाय पीने लगे तो ओमकारनाथ जी यहाँ सभा में बैठे थे, वहाँ से ऊपर स्टेज पर आके निखिल रवि अभी मत बजाओ, उन लोग को चाय पी लेने दो, हाँ अभी नहीं बजाओ, एकदम रोक दिया। फिर कहते कि ये ऐसा गाना बजाना नहीं है कि आप आइसक्रीम खाते खाते और खाना खाते, शादी में नहीं गाने जाते थे। एक बार गए, कहते मैंने ज़िंदगी की गलती कर दी, मैं नहीं आऊँगा। इस तरह अगर शादी में लोग खाना खा रहे हैं, कोई बात कर रहा है, तो ये इस तरह का गाना है ही नहीं, मुझको आना नहीं, जाए जितना पैसा दे तो कभी नहीं जाते थे। तो फिर तुरंत वीसी ने चाय वापस भेज दी और दूसरे दिन अखबार में छप गया स्कैंडल ओवर कप ऑफ टी। तो वो किसी और का भी अपमान मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इन बिटवीन उठना नहीं, इन बिटवीन आना नहीं। आप सोचिए, नई कॉलेज खुली थी BHU में, 50 में कॉलेज खुली और 54-55 की शायद बात है, 57 में तो वो रिटायर्ड हो गए। और उस समय वेणुशंकर झा, प्रोफेसर वेणुशंकर झा वीसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी थे, और उनको वो प्रोग्राम में आना था, म्यूज़िक कॉलेज के प्रोग्राम में। और टाइम का तो ऐसा था कि हमको जो बहुत बताया कि 6 बजे प्रार्थना शुरू होनी है, तो 6 बजने में 5 मिनट पर तबला तानपुरा मिला के बैठना है और ऐसे देखते रहना है, और जहाँ वो काटा वहाँ आया वहाँ ओम लगा देना है। तो ये था, और उन्होंने क्या कहा कि वीसी को आना चाहिए था, वो आ नहीं पाए हैं। हालांकि उनको 2-3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन प्रदीप मतलब मेरे पतिदेव और अतुल देसाई दोनों को लड़के जो उनके थे, उनको कहा तुम लोग बाहर गेट पर एक कुर्सी लेके रुको, और वीसी आए तो कुर्सी पर बैठाना, उनको कहना कि प्रार्थना खत्म हो जाएगी फिर अंदर जाएंगे, और मुझको बोलना मैं आऊँगा उनको रिसीव करने, लेकिन इन बिटवीन नहीं आने देना उनको। और सचमुच वो 3-4 मिनट में आ गए, बहुत लेट तो उनका नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो लड़कों ने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा आप यहाँ प्लीज़ बैठ जाइए, 5-6 मिनट में प्रार्थना और हो जाएगी, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। नहीं, वो भी इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम ऑल्सो कि नहीं तुम्हारे गुरुजी ठीक करते, शुड बी ऑन टाइम। इतने टाइम दैट मीन्स द पंडित ओमकारनाथ जी न्यू हाउ टू मेक अ वाइस चांसलर, फ्रॉम वाइस चांसलर टू वर्च्यू चांसलर। बाद में वो अंदर आए और सुना, और इस तरह से तो वो संगीतकारों के एक और, अगर आप कहे तो एक और प्रसंग कहूँ, इंग्लैंड गए थे, मतलब यूरोप के उसके टूर में, तो काफ़ी देश यूरोप के घूमते घूमते इंग्लैंड में आ गए, और इंग्लैंड के जो अपने यहाँ के एलची, इसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, उन्होंने पार्टी रखी थी, उसमें गए थे। वो एम्बेसडर उनको कहते कि आप ये जॉर्ज पंचम को एक दरखास्त लिख दीजिए कि 15 मिनट का टाइम दे और आपका गाना सुने, वो सुनेंगे तो आपको राय बहादुर और सब कुछ का मिलेगा, काफ़ी इनाम भी मिलेगा। तो देट उसी समय बोलने लगे, यूरोप में मैं आया हूँ, इतने देशों में गा रहा हूँ, काफ़ी मेरे नाम की धूम है, अगर जॉर्ज पंचम को मेरा गाना सुनना है तो वो मुझको इन्वाइट करे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम, मुझको नहीं चाहिए कोई भी राय। तो ये ताव उनका पहले से रहा, छोटे थे तब से और अंत तक। तो ये संगीत और संगीतकार के मान के लिए वो बहुत पर्टिकुलर थे। वाह। सम पे तो सब म्यूजिशियंस आते हैं, पर सम के साथ समय पे भी आते, वे है पंडित ओमकारनाथ जी। रियली। Yes, once again we can have a short piece on the violin, and thereafter we are going to have Jogi Mat Ja Mat Ja Mat Ja. We are running late. एक 2 मिनट ये बात करती हूँ। उनके मेरे गुरुजी पंडित बलवंत राय भट्ट, जो उनकी इतनी स्ट्रिक्ट, उनके क्योंकि बहुत लोग उनके पास से भाग गए कि इतने बहुत क्रोधी है और गुस्सा करते हैं तो नहीं करते थे, लेकिन पंडित बलवंत राय भट्ट जी उनके पास 12 साल टिक गए और खूब गाना सीखा। तो उनकी जब शादी, पंडित बलवंत राय भट्ट ब्लाइंड थे, तो उनकी जब शादी तय हो गई और उनके माँ बाप नहीं थे, तो अपने पिता की तौल पर उन्होंने कुमकुम पत्रिका ये छपवाई कि मेरे विद्यापुत्र पंडित बलवंत राय भट्ट का
वसुंधरा तलवलकर के साथ शादी हुई है और आप सबको मेरी ओर से सादर निमंत्रण है उसमें रिसेप्शन में पधारने के लिए। नीचे ओमकार नाथ ठाकुर। तो मुझको ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मालूम कि किसी गुरु ने अपने शिष्य के लिए रिसेप्शन अरेंज किया हो। दैट वॉज इतना औदार्य भी था। अगला जो पीस है वो राग तिलंग में एक जो पंडित जी बजाते थे, पंडित जी गाते थे, ननदिया कैसे नीर भरूं। तो मेरी नानी जिन्होंने पंडित जी से तालीम ली, वो जब भी हमें सिखाती है तो हमेशा वर्ड्स लिरिक्स के साथ सिखाती है, ताकि वही जो हमारा गायकी अंग है, ताकि वो मीनिंग हमारे बजाने में उतरे। तो तुम गाते भी जाओ। तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन सुनाती हूँ, ताकि फिर आप सुनते वक्त यू कैन इमेजिन द लिरिक्स। तुम्हारे साथ अब इतना ऊंचा स्वर तो मैं नहीं गाती हूँ। तो मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन गा के सुनाती हूँ, सब सिंगर्स बैठे हैं। तो क्या हुआ? ननदिया कैसे नीर भरूं। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज की बहू है और वो शी इज़ कम न्यूली इनटू द ससुराल एंड वो ननद को कह रही है कि मैं कैसे नीर भरूं, जो घड़ा है वो इतना भारी है। ओके, सो जो पंडित जी इसमें वेरिएशंस करते थे, ही यूज्ड टू डू ननदिया कैसे 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 नीर भरूं। सो यू नो वो कैसे में प्ले करना, फिर ननदिया में थोड़ा खेल करना। सो मैं कोशिश करती हूँ संक्षेप में टू रिक्रिएट इट। आई वॉन्ट टेक मच टाइम, जस्ट 4-5 मिनट। भारी गागर सिर न संभाले, अचरा कैसे पकड़ूं, ऐसे पूरा शब्द है। In Sanskrit, they have defined who is Nanand. Na nandati iti nanand. आप सीए नाम कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग दोनों। क्या बात, दोनों चीज बहुत बढ़िया है। वाह वाह इस्ताबेल, क्या बात। विशाल।
Actually speaking, Panditji's 50th death anniversary is on the 29th of December. And we are going to have a similar program at Bhavan's Andheri on that very day at 6:30. I think when Elizabeth Taylor took her 6th divorce, Bob Hope said, something that was meant to be an event has turned out to be a sequence. But we want that these programs should not remain an event, but they should be part of a sequence. And I'm sure with your blessings and Archana Ben, we can do a lot many of these programs जो थोड़ा हटके है. Usually by 12:30, Kamlesh Mota stands in the wings and he says, "Shut up." I am trying not to look that side because there is a share also. ऊपर मत देखो, मुख मुरझा जाएगा. नीचे मत देखो, आंख से अंजन गिर जाएगा. पीछे मत देखो, कोई दिल ठुकरा जाएगा. सामने मत देखो, दिल से दिल टकरा जाएगा. तिरछी नजर से देखो, सब कुछ समझा जाएगा. But I am trying not to look with a Tirishi Najar. So, before we go to Jogi Mataja, 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 Rag Bhairavi and Bhairavi Sada Sukhadaini, that is what they say in Sanskrit. We are very keen, Archana Ben. Can you demonstrate the Prayog Siddhi की बात है कि उनका वो स्वर लगाने का जो तरीका था, वो पुकार का भाव, लाचारी का भाव, समर्पण का भाव, अनुनय का भाव, अभी थोड़ा तो बताइए. इतना सारे भाव पता नहीं मैं कितने दिखा पाऊंगी. मैं कुछ गाना कोशिश करूंगी, मैया मोरी के मैं पुकार, लेकिन बहुत थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं गाऊंगी. आई एम अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ENT. लेकिन एक बात कहूँगी कि ये 28-29 को हम लोगों ने इस बार पंडित जी के ऊपर मैंने और मेरी एक शिष्या ने एक डॉक्यूमेंट्री उतारने की कोशिश की, क्योंकि अन्य कई म्यूजिशियन पर डॉक्यूमेंट्री है, पंडित जी पर नहीं है, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया और बनारस में इस बार डॉक्यूमेंट्री उतारी है. और दिस 29 इट शुड कम ऑन YouTube और मैं आपको लिंक भेजूंगी, सब लोग देख पाएंगे. और आई थिंक इनके ये जो स्वरों में भाव जो वो करते थे, वो इट वॉज टिपिकल टू हिम. पता नहीं मैं इतना कितना कर पाऊंगी, नहीं जानती हूँ मैं. 2 minutes, 3 minutes, just show. उसके बजाय मैं उनकी बनाई हुई कोई कंपोजिशन थोड़ा सा सुनाऊं तो चलेगा? 2 minutes, 3 minutes, because I can see English yes, on yes. that side. तो उन्होंने BHU में रहते हुए BHU का कुलगीत कंपोज किया था. थोड़ा सा मैं केवल वही सुना देती हूँ बस, और कुछ नहीं. बहुत अच्छी कविता, मैं एक स्टैंजा ही केवल सुनाऊंगी. मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये सर्व सृष्टि की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी. ये जो पुकारो सब कहते हैं वो मैया मोरी में और जोगी मज्जा में आपको सुनाई देगा. अभी जोगी मज्जा में वो ऊपर तार सप्तक पर जब मैया मैया करते हैं, दैट इज पुकार. Thank you, thank you. And now at last we come to the concluding piece, Jogi Mataja, Mataja, Mataja. I have a lot of people to thank. Bharatiya Vidya Bhavan, Kala Kendra, Sahitya Kala Sampada, Udayan Kamlesh Mota, Niranjan Bhai,
Udayan Samstha, Mrs. Banerjee, Archana Ben, all these artists. Now, for that vote of thanks, I have prepared two speeches. One is a short one. Second is a long one. The short one is, thank you. And the long one is, thank you very much. Yeah, Pranil recording. मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ जोगी मत जाओ मत जाओ मत जाओ स्वर में बहुत कहा जाता है, जोगी पास में है तब जोगी मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ
मत जा जोगी मत जा। जोगी जरा सा दूर है उधर तक। जोगी जोगी मत जाओ मत जाओ मत जाओ जोगी। जोगी काफी दूर है। जोगी जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी मत जा। जोगी मत जा। जोगी 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 मत जा मत जा मत जा। जोगी मत जा मत जा मत जा। भक्ति को सर जोगी प्रेम भक्ति को मार्ग न्यारो। प्रेम भक्ति को मार्ग न्यारो मार्ग न्यारो न्यारो। अपनी गली बता जा जोगी 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 मत जा मत जा मत जा मधुरा मधुरा। उत्तम दादा चलो तुम लो। अगर चंदन की
नंदन की